Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Wish you a very happy Onam. Today in this session, we're gonna discuss about the NEET PG 2023 All India Round 2 result allotment letter. And again, there is a rumor regarding court case in Andhra. So in this session or in this video, we will be discussing about what's the exactly there is any court case, or if there is a court case, then what's the regarding it, what can happen in the next show. All those details will be shared in this video, as well as we gonna also discuss about some important rules and regulations regarding your upgradation as well as your security amount forfeiture rule. So उससे पहले मैं बता दूं, if you are new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel Admission Media. The link is in description box. As well as if you're looking for a NEET PG 2023 revised cutoff, then we have made a separate group, separate WhatsApp group where your contact details will be totally private. It won't be visible to others. And if you wish to join that particular group, or you are waiting for a NEET PG 2023 revised cutoff, again you can join that particular group. The link is in comment section as well as in description box. बात करूं इज देयर एनी कोर्ट केस रिगार्डिंग और पहले मैं बात करता हूं रिजल्ट के बारे में. नीट पीजी 2023 ऑल इंडिया राउंड 2 प्रोविजनल रिजल्ट हैज बीन पब्लिश्ड, बट द फाइनल रिजल्ट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड टिल नाउ. द रीजन इज दैट there is a there is a court case filed in Andhra High Court. The court case is regarding that the choice filling time, which was in the evening, it was around 12 p.m. But in the evening, MCC scrolled a notification in which they have mentioned that we are updating the time and we are extending the time till 9 a.m. in the morning. But as per the official or as per the students, they are mentioning that the choice filling closed 1 hour before the actual time, means up to 9 a.m. the timing was there, but they have closed it somewhere around 7 to 8 a.m. itself. This is the reason where, due to that, the court case who have filed, the people or the candidates who have filed the court case, they are mentioning that we didn't fill our choices filling, and due to that their choice filling has not been completed for all India round 2, and they have missed it. For that, they have filed a high court case in Andhra itself. The detail of case is already here. We will be sharing the PDF, the image in our Telegram channel. You can get the details. But what's the delay due to that? If the court case is expected and the High Court gives order to MCC to reopen the choice filling for these particular candidates or everyone, in the both case, the final result will be delayed, and possibilities can also be there that the provisional results get cancelled also. So till now you have to wait for it. The hearing date is today itself. Whatever the latest updates regarding the court case, whether it's gonna be accepted, the rejected, or what gonna happen, what will be the final outcome, we will be updating you. But till now you have to wait for it. But due to this, the counseling will be stressed out because the result was expected by tomorrow. Yesterday late evening itself, and the joining was started from tomorrow. But till now the final result is not here. Allotment letter is not published, and the joining up date is starting from today itself to 5th of September only. So if the delay will happen, MCC again have to publish a new schedule, and this time they will be publishing their own schedule 5th time again, that the counseling has been stressed. But every time what they are doing, they are decreasing the date. The final date is still the same, that is 10th of October. But if the stretch is going on and the court case is happening and anything, again counseling will be stressed more. Every schedule will be postponed again. But let's see what happens, what not happen. But if I talk about the upgradation rule, mainly security amount forfeiture के बारे में पहले मैं डिस्कस करूं. Regarding your court case or whatever the schedule, will be updating you, so no comments on that. अब अगर आपको सीट मिल गई है, अलॉटमेंट लेटर नहीं आया है अभी तक, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके 2 to 3 आवर बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, and after that only you can do upload your documents, the essential documents, the documents to be uploaded, the complete video, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ अपलोड करना है, उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है. नहीं देखा है तो आप उसे एक बार वॉच कर लो, क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी आपकी. अगेन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ से देख सकते हो. एंड उसके बाद ही आप अपने ट्रेवल प्लान करो, क्योंकि क्या होगा कैसे नहीं होगा अभी इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट. सो वी वोंट बी कमेंटिंग एनीथिंग ऑन डेट, बट जो भी चीज़ें होंगी आपको हम अपडेट करेंगे. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर एज वेल एज हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है एडमिशन मीडिया, उसे ज्वाइन करके रखें. जो भी इंफॉर्मेशन होगा वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे. बात करूँ सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीचर के लिए, तो राउंड 2 में आपको कोई भी सीट मिल गई है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफीट हो जाएगा, एक्सेप्ट अगर आपने राउंड 1 से राउंड 2 में सीट को अपग्रेड किया है. देयर इज अ रूल, अगर आपने राउंड 1 से राउंड 2 में सीट को अपग्रेड किया है, यू गॉट द अपग्रेडेशन एंड यू वांट टू एग्जिट
विदाउट एनी फोर फीचर। तो रिजल्ट आने के बाद 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा एज पर द काउंसलिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपके पास अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है राउंड 1 से राउंड 2 में, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपको फोर फीचर नहीं करानी है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो रिजल्ट के विद इन 2 डेज। बट वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने न्यूली अप्लाई किया था या जिनको अपग्रेडेशन नहीं मिला है या जिनको फाइनल राउंड में राउंड 1 टू राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन जाना है, इन सारे कैंडिडेट्स का आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट कर दिया जाएगा अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट मिल गया है। इन दैट केस सिर्फ जो राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किए हैं इनको सीट मिल गई है। अगर ये सीट को छोड़ना चाहते हैं इन दैट केस इनका फ्री एग्जिट का ऑप्शन रहेगा, रिजल्ट के विद इन 2 डेज इनको रिजाइनिंग करनी होगी। वो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी एमसीसी की तरफ से आना बाकी है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट राउंड 1 सीट अपग्रेडेशन टू राउंड 3, मतलब कि राउंड 1 सीट को आप अपग्रेड करने आए थे राउंड 2 में, अपग्रेडेशन नहीं हुआ, यू ऑलरेडी हैड रिटेन्ड योर सीट राउंड 1 एंड यू अगेन विश टू अपग्रेड इन राउंड 3 एज पर द नीट यूजी रूल्स एंड रेगुलेशन। एमसीसी ने ये रूल आपकी नीट यूजी के लिए क्लियर किया हुआ है कि ये चीज आप कर सकते हो, राउंड 1 की सीट को राउंड 3 में आप अपग्रेड कर सकते हो। सिक्योरिटी अमाउंट भी वहां पे आपका फोर फीचर नहीं हो रहा था, आप सेम सिक्योरिटी अमाउंट के साथ भी अपग्रेड कर सकते हो। अगेन राउंड 2 से अगर आपको राउंड 3 में अपग्रेड करना है, टिल नाउ जो रूल एंड रेगुलेशन है उसमें यह है कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई है आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। अपग्रेड करना है यू हैव टू पे द सिक्योरिटी अमाउंट अगेन। बट इन नीट यूजी व्हाट दे हैव डिड, आप सेम सिक्योरिटी अमाउंट के साथ अपग्रेड कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली फॉर नीट पीजी इट विल बी द सेम, बट as per the Supreme Court order, if you have joined your round 2 seat, you will be eliminated from states counseling। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर आपको राउंड 2 में अलॉटमेंट मिल गया है ऑल इंडिया के, अगर आप सीट ड्रॉप कर देते हो आप स्टेट्स में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। इसके लिए अभी तक कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं आया है। जो कोर्ट केस था वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, इट्स रिगार्डिंग व्हाट। तो इस चीज पे अभी भी क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। अगर एमसीसी की तरफ से रिजल्ट के साथ कुछ क्लेरिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को प्लान करें, क्योंकि अगर एक बार आपने राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर लिया या ज्वाइन एंड अपग्रेड के लिए आप जाते हो तो स्टेट्स काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इट्स अ क्लियर कट ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो एमसीसी को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट नहीं किया है, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है कि यू हैव टू चेंज इट। बट टिल नाउ एनएमसी एज वेल एज एमसीसी की तरफ से कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट हुई है तो यू हैव अ राइट टू ड्रॉप योर सीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने ज्वाइनिंग और ज्वाइन एंड अपग्रेड किया तो स्टेट्स राउंड 2 से आपको बाहर जाना पड़ेगा। दिस इज द रीजन मल्टीपल ऑफ द स्टेट्स हैज स्टार्टेड देयर रजिस्ट्रेशन, देयर सिक्योरिटी अमाउंट, बट चॉइस फिलिंग अभी तक कहीं भी नहीं स्टार्ट हुई है। स्टेट्स की तरफ से क्लेरिफिकेशन आना बाकी है। वाइल एट द सेम टाइम गुजरात ने ऑलरेडी ये मेंशन करके रखा हुआ है, गुजरात इज द ओनली स्टेट जिनके अकॉर्डिंग ये रूल है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 2 में अपनी कोई भी सीट ज्वाइन कर ली तो आप उनके स्टेट राउंड 2 से बाहर कर दिए जाओगे। तो ये चीज़ें स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। हो सकता है इन फ्यूचर टाइम कुछ और स्टेट सामने आ जाए, जैसे कि ऑलरेडी इन्होंने राउंड 3 यानी कि मॉपअप राउंड के लिए रूल रखा हुआ है। मल्टीपल स्टेट्स में ऑलरेडी ये रूल है कि अगर आपने स्टेट्स राउंड 3 में कोई भी अलॉटमेंट हो जाता है, दे आर सेइंग अलॉटमेंट नॉट द ज्वाइनिंग, अगर आपको अलॉटमेंट भी हो जाता है तो आप इनके स्टेट से राउंड 3 से बाहर कर दिए जाओगे। द स्टेट नेम इज महाराष्ट्र। कुछ और स्टेट्स में भी ये चीज़ें चल रही हैं। वाइल इफ आई टॉक अबाउट द कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग, राउंड 1 का मॉक अलॉटमेंट आया है। मॉक अलॉटमेंट इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट विल बी पब्लिश लेटर ऑन। मॉक अलॉटमेंट इज जस्ट अ आइडिया अबाउट द अलॉटमेंट। अगर आपको यहाँ पे सीट मिली है तब भी आपको फाइनल अलॉटमेंट में हो सकता है कि सीट मिले ना मिले, या आपकी सीट किसी और कॉलेज में मिल जाए। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। टिल नाउ द काउंसलिंग इज स्टिल इन डिलेमा इटसेल्फ कि एग्जैक्टली क्या होना है, कैसे होना है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आप भी वेट करो, हम भी वेट कर रहे हैं। द थिंग्स मेन विल बी क्लियर, वी विल बी अपडेटिंग यू एज पर दैट। तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहो, कंटिन्यूसली आप वीडियोस देखते रहो। एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ पेड काउंसलिंग और प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545925519। एज वेल एज अगर आपको अभी तक हायर क्लिनिकल सीटें नहीं मिली है तो कहाँ पे मिल सकती हैं, कौन से बजट रेंज में मिल सकता है, या इवन आफ्टर दिस नीट पीजी 2023 रिवाइज कट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ हायर क्लिनिकल ब्रांचेस बिकॉज minimal positive shift has been seen in government colleges. But if I talk about the deemed universities,
निगेटिव शिफ्ट इज सीन इन सम ऑफ द कॉलेजेस, जहां पे 40,000 पे लास्ट राउंड 1 में सीट मिली थी, इस बार 30 to 35,000 में ही खत्म हो गई है कुछ ब्रांचेस की। तो गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव शिफ्ट आ रही है, प्राइवेट के लिए आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं, निगेटिव में चीजें चल रही हैं, तो आपको काउंसलिंग उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये भी हो कि गवर्नमेंट की सीटें बची रह जाएं, प्राइवेट में स्पेशली मैनेजमेंट और एनआरआई की सीटें ही खत्म हो जाए। इस केस में आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेज अगर चाहिए, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, कहाँ पे मिलेगा, कितने बजट में मिलेगा, कैसे मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लेना इज नॉट मोर देन इनफ, क्योंकि स्टेट्स काउंसिलिंग में कौन कौन से स्टेट्स को टारगेट करने हैं, हर जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, मैक्सिमम स्टेट्स ये चीजें लेके आएंगी, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, स्टे राउंड भी ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर्नाटक की तरह ऑफलाइन रख सकते हैं। इस केस में अगर आप सारे स्टेट्स को टारगेट करोगे तो यू कैन प्लान योर ट्रेवल इन ईच स्टेट्स, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कहाँ पे सीट मिलेगी, फॉर दिस डिटेल्स you can avail our premium counseling services. The details is already on our website admissionmedia.in. Thank you and thank you so much for watching this video. If you have any query, you can contact me on the given number below, that is 9545 95519. Thank you and thank you so much for watching this video.